Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today I will start with grammar teaching. Today you will learn chapter number 13, prepositions. This chapter you have studied in previous classes also from 1st to 7th standard. 8th standard also the same thing is there with little broad concepts. See, prepositions are the words to show how people or things relate to one another, and they are used to convey different ideas. Like time means we can see prepositions of time, prepositions of position, movement, purpose, and way of doing something. Let's see which prepositions show time. After, during, since, on, at, before. These are the prepositions showing time. Then for position, around, at, behind, in, below, above, they show the position of the object. Then movement. For movement, over, through, towards, into, these prepositions are used. For purpose, because of, for, these prepositions are used. And by and with are also the prepositions for showing the way of doing something. Now prepositions are the word which go with certain nouns, noun phrases, adjectives or verbs. Some of the prepositions goes with some particular nouns, for example reason for. Then with adjective, kind to. See, according to the meaning of the sentence we have to change the preposition. It is not necessary that with agreed we will use to only. With agreed we will use to only, but we can use different preposition with same word, agreed with, but their meaning will be changed. So these are the some of the prepositions, the list of some prepositions. Let's observe the picture showing the place of different things, and it shows the use of different prepositions. This is the picture of a marketplace where there is a bank, hotel, then park road, Broadway, tree, one man is standing under the tree, some children are playing, pond is there, cat is also there, fountain is there. Okay, so many things are there. If you will study the paragraph and watch the picture given carefully, then you will understand the meaning of all the prepositions. Now see, kinds of prepositions showing place. First is showing place. So at, by, near, below, these are the prepositions which show place. ओके कहाँ पर है? सी पर है, नज़दीक हैं, बाय द सी, नियर द सी, पास में है, बिलो द सी, सी से नीचे हैं. ओके, सो दीज आर द prepositions showing place. नेक्स्ट वन इज prepositions ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस. डायरेक्शन मीन्स दिशा, कौन सी दिशा में जा रहे हैं. मूवमेंट मीन्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं, अप डाउन. ओके, सी हियर फर्स्ट पिक्चर, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स. The boy is going up the stairs. Movement is there. Still the boy is going up the stairs. Okay, and the girl is coming down the stairs. Here the going procedure is shown by up and coming down is shown by down. Understood? So movement is there. Second picture also shows movement. She is coming into the room. This is the room and the girl is entering the room. द बॉय इज़ गोइंग आउट ऑफ द रूम. रूम से बाहर जा रहा है. गर्ल रूम के अंदर आ रही है, बॉय है वो रूम से बाहर जा रहा है. सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इन टू. सी इन है वो पोजीशन दिखा रहा है, और जबकि इन टू है वो मूवमेंट दिखा रहा है. जब मूवमेंट कंटिन्यू है देन यू विल यूज़ इन टू. अंडरस्टूड. सी द थर्ड पिक्चर, ही इज़ वॉकिंग अप द स्ट्रीट. वो स्ट्रीट में जा रहा है एंड शी इज़ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो गर्ल है वो स्ट्रीट से आ रही है. ओके, हियर दिस इज़ द स्ट्रीट, दिस वन इज स्ट्रीट. द बॉय इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रीट एंड द गर्ल्स इज़ कमिंग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. सो अप डाउन इन टू आउट ऑफ दिस शोज मूवमेंट.
Some more prepositions are there to show the movement. See, the boy is walking towards his mother. Boy है अपनी mother की तरफ आ रहा है. And the baby is crawling away from his mother. Baby है वो उससे दूर जा रहा है. Okay, तो दूर जाने को बोलते away, away from. And पास में आने को बोलते towards. Understood? Next one is he is going to the market. देखो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो जा रहा है कि आ रहा है. सी द बैग्स. ही इज़ गोइंग टू द मार्केट. ये बॉय जो है वो मार्केट जा रहा है क्योंकि उसकी बैग है वो खाली है. शी इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से आई है तो बैग भरी हुई है. ओके, सो टू एंड फ्रॉम, दिस टू ऑल्सो शोज द प्रपोजिशंस. शी इज़ सेलिंग विद द विंड. ओके, जो विंड है वो इस तरफ की है, जो हवा है वो इस तरफ की है ना. तो शी इज़ सेलिंग विद द विंड. वो हवा की दिशा में ही सेल कर रही है. सो शी इज़ सेलिंग विद द विंड एंड ही इज़ रोइंग अगेंस्ट द विंड. ये जो है वो अगेंस्ट में, विंड के अगेंस्ट में वो रो कर रहा है. ओके, सो विथ अगेंस्ट ऑल्सो शोज द मूवमेंट. देन द बोट इज़ सेलिंग अप द रिवर. बोट है वो रिवर की तरफ जा रही है, रिवर में सेल करती हुई जा रही है. द फिश इज़ स्विमिंग डाउन द रिवर. फिश है वो हमेशा, हमें पता है, पानी के अंदर ही वो स्विम करती है. ओके, दे आर थ्रोइंग अ बॉल टू ईच अदर. एक दूसरे को बॉल डाल रहे हैं वो लोग, है ना. नेक्स्ट वन इज़ दीपा इज़ जंपिंग इन टू द रिवर. मूवमेंट दिख रही है ना यहाँ पर, ये जंप करने की. ओके, दीपा इज़ जंपिंग इन टू द रिवर एंड जो इज़ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द रिवर. जो है वो बाहर निकल रहा है, दीपा अंदर जंप कर रही है. सो ऑल दिस प्रपोजिशंस दे शो मूवमेंट. ही इज़ वॉकिंग अक्रॉस ओवर अ ब्रिज. ये जो पिक्चर दिया है अक्रॉस एंड ओवर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स. अक्रॉस यानी एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस करना उसे. ओके, ओवर यानी उसके ऊपर होना. अंडरस्टूड. ही जम्प्स ओवर द वॉल. टच किए बिना उससे, उसके ऊपर से कूदना. जम्प्स ओवर द वॉल. दे आर थ्रोइंग बॉल एट ईच अदर. एक दूसरे के सामने बॉल डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं. वो लोग डाल नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं, है ना. वो देखो कैच नहीं खेल रहे, वो थ्रो कर रहा है बॉल को. वी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट पास्ट द बेकरी. बेकरी के पास से होकर हम स्ट्रीट से निकले. ही रन्स अक्रॉस द रोड. सी, अभी मैंने कहा ना कि अक्रॉस यानी क्रॉस करके. तो ही रन्स अक्रॉस द रोड. द कार्स आर गोइंग राउंड द राउंड अबाउट. देखो यहाँ पे गोइंग राउंड है. ओके, तो कार्स आर गोइंग राउंड द राउंड अबाउट. देन ही फेल ऑफ द ट्री ऑन टू द ग्राउंड. ये बच्चा है जो ट्री पे से गिर के कहाँ पे गिर गया है, ग्राउंड पे गिर गया है. द कार्स आर गोइंग थ्रू द टनल. थ्रू यानी कि बीच में होल है, वहाँ से होकर टनल के नीचे ही है, वो टनल के अंदर ही है और बाहर निकल रही हैं. ओके, तो थ्रू आएगा, इन नहीं आएगा, थ्रू आएगा क्योंकि उनकी मूवमेंट कंटिन्यू है. देयर इज़ अ डॉग अमंग द शीप. देयर इज़ अ डॉग अमंग द शीप. अब यहाँ पर अमंग एंड बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. सी, बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स. जब दो चीज़ें या दो इंसानों के बीच की बात बतानी है तो बिटवीन आएगा. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स देन वी विल यूज़ अमंग. वी विल नॉट यूज़ बिटवीन फॉर more than two persons. Understood? Now let's see the exercise. Ramesh has been here dash a long time. जब भी हम लोग इस तरह से टाइम की बात करते, एक टाइम पीरियड है. ओके, तो what we will use for that? For, FOR, for. Ramesh has been here for a long time. Amitabh Bachchan was born. See, एट है वो पर्टिकुलर प्लेस बता रहा है. यहाँ पे इलाहाबाद है, वो एक सिटी का नाम है ना. ओके, तो अमिताभ बच्चन वॉज बॉर्न एट इलाहाबाद विच इज़ इन उत्तर प्रदेश. कहाँ पर है इलाहाबाद? उत्तर प्रदेश में है. ओके, तो पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, पर्टिकुलर जगह कौन सी है? इलाहाबाद. और वो कहाँ पर है? इन उत्तर प्रदेश. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन. ओके, पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर प्लेस होती है, देन वी विल यूज़ एट. ओके, थर्ड वन इज़ dash giving me board and lodging, my friend found a suitable job for me. Beside, besides.
See, what is the difference between beside and besides? Beside and besides, क्या डिफरेंस है दोनों में? बिसाइड यानी आस पास में, ओके. बिसाइड मीन्स पास पास में. हरेन सेट बिसाइड महेन, ओके. तो बिसाइड यानी आस पास में, और बिसाइड्स मतलब ये दोनों के अलावा और भी कुछ, ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड सेंटेंस? बिसाइड्स गिविंग मी बोर्ड एंड लॉजिंग, BESIDES. Besides giving me board and lodging, my friend found a suitable job for me. सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, रहने खाने की व्यवस्था नहीं की, लेकिन मेरे फ्रेंड ने इसके अलावा suitable जॉब भी मुझे ढूंढ कर दी. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन beside and besides. Then fourth one, the sun will not set today dash 6 PM. 6 PM से पहले सन सेट नहीं होगा, तो बिफोर, ओके. बिफोर. द सन विल नॉट सेट टुडे बिफोर 6 PM. अंडरस्टूड. ही विल रिटर्न टू द UK डैश अ मंथ. ही विल रिटर्न टू द UK, वो UK रिटर्न हो जाएगा. विल रिटर्न है, ओके. हो जाएगा, कब हो जाएगा? विद इन, WITHIN, विद इन, साथ में लिखना है, ओके. डिफरेंस है, अगर अलग कर दोगे विथ और इनको तो अलग हो जाएगा, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ओके. सो विद इन पास में लिखना है. ही विल रिटर्न टू द UK विद इन अ मंथ. 6 नंबर, द गवर्नमेंट सेट अप अ कमिटी डैश इंक्वायर डैश द मैटर. इंक्वायर है यहाँ पर, दूसरा वर्ब आ गया है तो टू के साथ लिखेंगे. सेट अप अ मीटिंग टू इंक्वायर इनटू द मैटर. The government set up a committee to inquire. The government set up a committee to inquire about आएगा यहाँ पर, into नहीं आएगा, about the matter, okay. 7th number, Mrs. Nayer's work is far superior dash Mrs. Sen's in the field of art. यहाँ पे दो लोगों की कंपैरिजन की बात है और सुपीरियर यूज़ हुआ है, ओके. तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे टू. मिसिस नायर्स वर्क इज़ फार सुपीरियर टू मिसिस सेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट. देन 8 नंबर, ही इज़ मैरिड डैश माई सिस्टर. वो मेरी सिस्टर से उसने शादी की है, तो ही इज़ मैरिड टू माई सिस्टर. अंडरस्टूड. 9 number, his journey was beset dash difficulties and it took him a long time dash complete it. His journey was beset यानी कि उसकी जर्नी है वो डिफ़िकल्टीज से भरी हुई थी, ओके. तो विथ डिफ़िकल्टीज एंड इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इट. 10 number, दिस एडिशन ऑफ हिज बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अब कंपेरिजन है, ओके. डिफरेंट फ्रॉम, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ओके. ये बुक का ये एडिशन है वो पहले वाली से अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है. फ्रॉम कंपेरिजन है, ओके. चलो एक्सरसाइज 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हर एक में एक एरर दी हुई है, ओके, एंड यू हैव टू करेक्ट द एरर. Sentence is first one, I have not met my father from a long time. Can you identify the mistake? What is the mistake here? I have not met my father from a long time. So here from is given wrong. Instead of from, what we will use for? I have not met my father. You will underline the word from and write here for, okay. Second one, the four friends distributed the money between them. What is the mistake here? Between is the mistake. Why between is mistake? Because between is used only for two persons or two things. Here four friends हैं, okay. So what will come? Among, OMONG.
among. Understood? Then 3 number, beside being heavily fined he was sent to jail. इसके अलावा वो वाले मीनिंग में है ना, तो beside इज रॉन्ग. व्हाट वी विल राइट? बिसाइड्स. बिसाइड यानी कि बगल में बैठना, बगल में होना. ओके, बट व्हाट वी विल राइट? बिसाइड्स. एस लग जाएगा. 4th वन, he has been suffering from fever from last Monday. He has been suffering from fever from last Monday. What is the mistake here? From is the mistake because एक ड्यूरेशन बता रहा है ना, तो ड्यूरेशन बता रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस. लास्ट मंडे से एक पर्टिकुलर पीरियड है. सिंस लास्ट मंडे. ओके, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे. 4th one is done. 5th number is, he is the boy whom I gave the book to. Here the mistake is to, T-O-O-2. What we will write? T-O-2. Okay, what we will write? T-O-2. 6th number, he was struck at the head with an unknown assailant. At की जगह पर क्या आ जाएगा? On. Struck on the head with an unknown assailant. Then next one is, he jumped in the well to escape arrest. Movement है ना, into आएगा. He jumped into the well to escape arrest. Next one is, he is very proud about his success in the tournament. तो proud के साथ हमेशा off जाता है. ओके, हमने देखा ना कुछ वर्ड्स हैं उसके साथ फिक्स है, तो अबाउट की जगह पर वी विल यूज़ ऑफ. नेक्स्ट वन इज़, द ट्रेन विल अराइव इन द स्टेशन बाय द राइट टाइम. अराइव इन इज़ द मिस्टेक. व्हाट विल वी यूज़? एट, बिकॉज इट इज़ पर्टिकुलर प्लेस. कौन सी प्लेस पर आ रही है ट्रेन? एट स्टेशन, एट द स्टेशन बाय द राइट टाइम. व्हाट आर यू लुकिंग? समथिंग इज मिसिंग हियर. ओके, तो आफ्टर लुकिंग व्हाट यू विल ऐड? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या चीज़ है जो ढूंढ रहे हो? तो आफ्टर लुकिंग ऐड फॉर एंड पुट क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? prepositions ऑफ प्लेस. ओके, नाउ prepositions ऑफ टाइम. सी, specific time is shown by the words, by the prepositions like at, on, in. See, the examples are given. On, the show will start at 8 o'clock. 8 o'clock is the specific time, 8 o'clock. So at is given. The program will start at night at the same time at Christmas. Okay, so at shows the particular time. On refers the specific days. अगर किसी days की बात करनी है, on Monday, on Friday, तब on यूज़ करेंगे. For example, on December 25th, on Monday. एंड इन रिफर्स द पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन 2008, मतलब 2008 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी. इन समर मीन्स समर सीजन जितने टाइम पे चलता है वो कोई भी टाइम पे. इन एन आर मीन्स 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, तो 60 मिनट्स में कोई भी मिनट पर. ओके, अंडरस्टूड? ऑन इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक डेज, इन इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और एट है वो स्पेसिफिक टाइम या जगह के लिए होता है. ओके, then duration of time is shown by before, after, by, since, till, until, up to. Okay, duration of time is shown by before, after, by, since, until, up to. duration यानी कि कहाँ से कहाँ तक, ये चीज़ें तो duration हुआ. फिर टाइम है वो बिफोर आफ्टर से भी होता है. बाय ट्यूसडे यानी ट्यूसडे तक. सिंस 1995 टिल until January up to Monday morning. These are the words showing time. Then duration of time over a specific length of time. एक जो specific length है उससे ज़्यादा ऊपर है टाइम, that is shown by the words like between, for, during, from, to. For example, we were in Kolkata for during दुर्गा पूजा. तो for दुर्गा पूजा यानी दुर्गा पूजा के लिए, और ड्यूरिंग दुर्गा पूजा मीन्स दुर्गा पूजा जितने दिन चलती है उतने दिन के लिए. ओके, वी वर इन लंदन फॉर 20 days. 20 days के लिए लंदन में थे. बिटवीन, अब स्पेसिफिक डेज दिए हुए हैं, December 20 to 10 January.
We can write in this way also. We were in London from December 20 to January 10th. Understood? Okay. Now, I hope you understood all these things. Time, place. Let's start with exercise 3. Fill in the blanks with suitable prepositions. My son will come back from Cape Town dash December next. ओके कोई स्पेसिफिक डे नहीं दिया है, स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, मंथ दिया है जो ड्यूरेशन बता रहा है टाइम का. ओके तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट हियर? बी वाई बाय. माई सन विल कम बैक फ्रॉम कैप टाउन बाय डिसम्बर नेक्स्ट. अंडरस्टूड? सेकेंड वन इज दे विल बी डैश इंडिया डैश 1st January डैश 15th January. दे विल बी, अब ज़्यादा ड्यूरेशन है. इन इंडिया, दे विल बी एक प्लेस है इंडिया, दे विल बी इन इंडिया. अब 2 डेट दी हुई है तो एक डेट के आगे आप लोग लिखोगे फ्रॉम 1st January to 15th January. इन फ्रॉम टू. अंडरस्टूड? थर्ड वन इज आई हैव लिव्ड डैश, I have lived dash Delhi. Here also we will write in. I have lived in Delhi. कितने सालों तक रहे हो? For 20 years. हमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि इतने साल से इतने साल तक रहे हैं. ओके इतने ईयर से इतने ईयर तक. For 20 years पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है. So we will write for. Fourth one, a trade fair will be held dash Delhi. Here also Delhi आया. In Delhi. ओके अब यहाँ पे एंड दिया हुआ है, 2 नहीं दिया है तो हम लोग फ्रॉम 33rd December एंड 20 December नहीं लिख सकते. हम लोग क्या लिखेंगे? बिटवीन. 2 डेट दिए उसके बीच में. ओके कभी भी 3rd December से 20 December तक के बीच में कभी भी. अंडरस्टूड? देन लास्ट फिल अप इज वी स्टॉप्ड डैश कोलकाता डैश क्रिसमस हॉलीडेज. वी स्टॉप्ड इन, हम लोगों ने कोलकाता में स्टॉप लिया. वी स्टॉप्ड इन कोलकाता. अब यहाँ पे क्रिसमस हॉलीडेज़ दिया है. ऑन, अगर हॉलीडेज़ नहीं दिया होता, सिर्फ क्रिसमस दिया होता तो हम लोग ऑन क्रिसमस लिख सकते थे. बट यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज़ दिए हैं जो 10 to 12 डेज़ के होते हैं. ओके सो वी विल राइट हियर ड्यूरेशन. सो ड्यूरिंग, DURING. अंडरस्टूड? We stopped in Kolkata during Christmas holidays. Understood, students? Okay. So all these 3 exercises, no. Exercise 2 and 3. Exercise 2, notebook. And 3. Exercise 2, 3 in notebook. How you will write? You will write the sentence first. Okay, then write the answer with the correction. For example, I have not met my father from a long time. ये आप क्वेश्चन लिखोगे. After that you will write the answer. I have not met my father for a long time. Understood? So your homework is exercise 2 and 3 in notebook. So revise the chapter, observe the things and pictures, and whatever information is given at the end of the picture, go through it and you will understand the whole chapter. Okay, in front of, near, ये सारे चीज़ें हैं. These are prepositions only showing the place. So go all through these things and try to understand by your own. Whatever problem is there, you can ask whenever we have online lecture. Okay, so don't worry regarding anything and try to learn the things, because in 9th standard you will not be taught all these chapters. Only the practice will be there, because all the things you have studied till 8th standard. 8th standard also is revision only, nothing is new for you. Okay, so if you don't know the things, if you are not understanding well, if you are not doing well, then revise the lectures. वापस से देखो. Okay, but try to understand the things and maintain your notes. Write exercise 2 and 3 in your notebook
exercise 1 you can write in your textbook. Okay, and whatever your problem is, you will note down on a piece of paper, and whenever the online lecture will be there, you will ask. Okay, you can ask me. We will meet in next lecture. Till then, bye.